अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो होने वाली है, एक लड़की हैं जो कि पीएम मोदी जी के बारे में कुछ बात कर रही हैं। सो चलते हैं, देख लेते हैं इस वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हैप्पी नवरात्रि, आप सबको बहुत बहुत दुर्गा माँ की जो है पूजा मुबारक हो बहुत ज़्यादा। एंड उसके साथ साथ मैंने एक व्लॉग बनाया है दुर्गा माँ के ऊपर, लाइक ये जो पूजा होती है या फिर मूर्ति वगैरह कैसे मेकिंग होती है उसकी रिगार्डिंगली। सो पाकिस्तान में कहाँ से कैसे होता है, सो वो सब आपको जानने को मिलेगा मेरे व्लॉग में। सो उसके लिए आप मेरे व्लॉग को जो है वो देखें और जो है वो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। सो वहाँ से आप जाके वॉच कर सकते हो। सो इससे आपको जो है वो नवरात्रि के बारे में अपडेट्स मिलती रहेंगी मेरे व्लॉगिंग चैनल पर। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। महाराष्ट्र से श्वेता उमरे, आपसे निवेदन है कि कृपया अपने विचार प्रकट करें। कृपया अपने विचार प्रकट करें। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। A very frenetic morning to Honorable Prime Minister Sir, respected Minister Sir. This is Shweta Umre from Government Institute of Forensic Sciences, Rashtra Sant Tukadoji Maharaj University, Nagpur, Maharashtra. Today, I will be speaking on the topic connecting India economically, culturally, and geographically. Now, when I look at this topic, I can see two aspects. The first aspect is how do we connect India to itself. The second aspect is how do we connect India to other countries globally. So when I talk about the first aspect, I dearly feel that India is already a connected nation. Now how? NASA has reportedly stated that the sound of the rotation of Earth is Om. And we have been worshipping Om, we have been worshipping landscapes, rivers, lakes since ages now, which states that our culture is born out of the geography of our country. Moving ahead to how culture is connected to the economy. When I talk on this, how can I not talk about the heritage tourism that we have, about Char Dham, about Golden Temple, about Haji Ali Dargah, about the beautiful churches of Goa. This heritage tourism generates revenue for our nation, and this revenue helps us build a better, a stronger economy. And that we have a stronger economy now, it is possible for us to reach to the portions of the country that are in the most remote areas. And this would lead to not only literate individuals, but educated individuals. And educated individuals of this nation would arise and develop a better and stronger culture, would arise and take care of the geography of their nation. And when this would happen, our India would arise. Talking of geography, when I see that people who drink water in Bengal, it comes from the Himalayas. The people who experience rainfalls in Mumbai are the clouds that are coming from Gujarat. And we have the second largest network of roads in the world, thanks to the 3% taxpayers of this country. Ahead, I would like to state how India is getting connected to other countries globally. India has always been rich in cultivable land, rich in heritage, and rich is amongst all of you beautiful youth people of this country. This is the reason why countries like superpowers want to come to us and invest on our land. This does not only bring pride and respect to my country, it also generates a very strong economical relationship with countries that are more developed than ours.
This is how economical bonds form between two countries, and this is how we start understanding each other's geography. And when economy and geography of two countries mix, there is an exchange of cultures. We adapt their culture, they adapt our culture. With this, I would like to state that the only thing that the youth of India can do is to strengthen this connection that already exists within and inter-India. How can we do this? We can do this by taking active participation and understanding what our responsibilities and our duties towards our country, our nation, our people are. And the day we realize our responsibilities, the day we start working hard, the face of this nation will change. And let's do this. Let's hold our hands, work even harder, and let's do what India was born to do, to build love, to build respect, and to generate peace. I would like to end my say with the quote. जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या ज़मीं क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा. With this, I end my say. जय हिंद. वेरी नाइस. Thank सो ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने जो है वो एक्सप्लेन किया है. स्टार्टिंग बहुत अच्छे से ली, और जिस तरह से जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया अबाउट जो है भारत की इकनॉमी के ऊपर. वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी भी थे, काफ़ी गौर से उनको सुन रहे थे, बल्कि सारा जो लोग थे वहाँ पर सब लोग ही उनको बहुत ही गौर से सुन रहे थे. और जिस तरह से इन्होंने स्टार्ट लिया वो बहुत ही ज़बरदस्त था. श्वेता ने स्टार्टिंग में शिवाजी और महाराज के बारे में भी एक्सप्लेन किया, और उसके बाद फिर जो है वो इकनॉमी के ऊपर के भारत में इकनॉमी किस तरह से डेवलप हो रही है, बूस्ट हो रही है, टूरिज़्म के ऊपर इस पे बात की गई. इसके अलावा वाकई में ही अगर हम देखें कि भारत में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, और जो गोवा है वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, इससे इकनॉमी आती है. और भी अगर जो है वो मतलब कि टूरिज़्म आएंगे, टूरिस्ट आते हैं तो टूरिज़्म के लिए, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो इकनॉमी बूस्ट करेगी, और भी डेवलपमेंट होगी, इम्प्रूवमेंट आएगी जीडीपी में, इकनॉमी में. एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, उन्होंने कहा कि भारत से मतलब दूसरी कंट्री से रिलेशनशिप, मतलब कि ग्लोबली रिलेशनशिप ऐसा है कि अब बाहर से लोग जो है वो भारत में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं. सो ये एक बहुत ही अच्छी एक स्टेप है जो कि भारत ने अब लिया हुआ है, और इससे जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है. और नो डाउट बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे कि टेस्ला हो गई और सैमसंग हो गई, मतलब इतनी बड़ी कंपनीज जो हैं वो सारी आईफोन भारत में डेवलप मेकिंग हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें जब भारत में बन रही हैं, सो इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है. और फिर भारत के रिलेशनशिप तो वैसे ही बहुत अच्छा है, तो लोग जो है वो फ्रेंडली माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. और इन फ्यूचर भी अगर इस तरह से करते रहेंगे तो और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी. और जो कि मुझे लगता है कि अभी ही इतनी इम्प्रूवमेंट आई है और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भी और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे. तो खैर इनका लास्ट में मुझे ये भी समझ जो आया वो ये कह रही है कि अगर जो है वो सब लोग मिलकर इस चीज़ पर, इस मिशन में लग जाएं, तो इससे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग गेन कर सकते हैं. सो अपनी दिन का आगाज़ मेहनत से करें और जो है वो अपनी कंट्री को आगे लेकर चलें. सो काफ़ी अच्छा इनका नोट था, मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने डिस्कस किया है. तो जो मेन चीज़ मुझे यहाँ पर लगी वो यही है कि यहाँ टूरिज़्म बहुत ही एक अहम चीज़ है. उसके लिए आप जो है वो बहुत ही उससे अर्न कर सकते हो, और जो है वो इसी से ही आप लोग और आते भी हैं, हर साल आते हैं, और बहुत सारे इससे जीडीपी इकनॉमी वगैरह बहुत ही इंक्रीज होती है, नो डाउट. सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. बाकी मैं श्वेता के बारे में एंडिंग में यही कहूँगी कि काफ़ी जो है उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा था, एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ही अच्छा था, और जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई था, और फेस पर स्माइल देकर जिस तरह से उन्होंने इतना फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात की, तो मुझे आइडिया हुआ कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी भी है, और एक कॉन्फिडेंस
लेवल इनका देखने को मिला, मतलब एक इंडियन लड़की का कॉन्फिडेंस लेवल देखने को मिला। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।